हेलो नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी माझीवाला क्लास 9 लेसन 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। It is fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. She thought for a minute and said, My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. ये एक गरीब चोर पर गिर गया और उसे मार डाला है। तुमने एक निर्दोष आदमी को मार डाला है, आपको दंडित होना पड़ेगा, यानी आपको सज़ा मिलेगी। उसने 1 मिनट सोचा और कहा, मेरे भगवान रुकिए। उस औरत ने कहा, मुझे पता है कि अब मैं उस सड़क पर क्यों चल रहा था। मैंने अपने लिए कुछ आभूषण बनाने के लिए सुनार को कुछ सोना दिया था। He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk and down on his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It is the damned goldsmith's fault. मैंने अपने लिए आभूषण बनाने के सुनार को कुछ सोना दिया था। वह एक आलसी बदमाश था। उसने बहुत सारे बहाने बनाए, कहा कि वह अभी देगा और वह पूरे दिन और फिर देगा। उसने मुझे 1 दर्जन बार अपने घर तक चलने के लिए बनाया। तभी इस ईंट वाले ने मुझे देखा। यह मेरी गलती नहीं है मेरे भगवान, ये शापित सुनार की गलती है। Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding. At once the king's bailiff searched for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. गरीब बात, वह बिल्कुल सही है। राजा ने सोचा, सबूत तोलना, हमें असली अपराधी मिल गया है। अंत में सुनार जहाँ भी वह छुपता है। एक बार राजा की जमानत के लिए सुनार की खोज की, जो अपनी दुकान के एक कोने में छिपा हुआ था। When he heard the accusations against him, he had his own story to tell. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It is true, I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I could not finish making her jewelry before I finished that rich merchant's order. They had a wedding coming and they would not wait. You know how important rich men are. जब उसके खिलाफ आरोप सुना तो उसके पास बात बनाने के लिए अपनी कहानी थी। सुनार ने कहा, मेरे भगवान, मैं एक गरीब सुनार हूँ। ये सच है कि मैंने इस डांसर को अपने दरवाजे पर कई बार आने दिया। मैंने उसके बहाने दिए क्योंकि मैं अमीर व्यापारी के आदेशों को पूरा करने से पहले उसके गहने नहीं बना सकता था। उसकी शादी होने वाली थी और वे इंतज़ार नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि धनी लोग कितने गरीब होते हैं। Who is this rich man? Who is rich merchant? Who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now wedding. यह अमीर व्यापारी कौन है जिसने आपको इस गरीब महिला के आभूषण को ख़त्म करने से
रोक लिया, उसे ऊपर और नीचे कर दिया, जिससे इस ईंटकार को विचलित कर दिया, जिसने उसकी दीवार को गड़बड़ कर दिया, जिसने शादी की। fallen on ancient man and killed him। एक निर्दोष आदमी गिर गया और मर गया। कैन यू नेम हिम? द goldsmith named the merchant, and he was none another than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle through the king back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. He arrived crying, "It was not me but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." क्या आपका नाम ले सकते हैं? सुनार ने व्यापारी का नाम बताया और वह कोई और नहीं था बल्कि घर का मूल मालिक था, या उसकी दीवार गिर गई थी। अब न्यायपूर्ण चक्कर में आ गया था। राजा ने सोचा व्यापारी के पास वापस आ गया है। जब उसे असभ्य रूप से बुलाया गया था, वापस अदालत में वह रोते हुए आया, ये मैं नहीं बल्कि मेरे पिता थे जिन्होंने आभूषण का ऑर्डर दिया था। वे तो मर चुके हैं, मैं एकदम निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड wisely. It's true, your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sign. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. लेकिन राजा ने अपने मंत्री से परामर्श किया और निर्णय के रूप में कहा, ये सच है कि आपके हमारे पिता सच्चे हत्यारे हैं। वह मर चुका है, लेकिन किसी को उसके स्थान पर दंडित किया जाना चाहिए। आपको उस आपराधिक पिता से सब कुछ विरासत में मिला है, उसके धन के साथ साथ भी पाप भी। You must die and order a new stake to be made ready for the execution. As the servant sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. उन्होंने एक नई जिम्मेदारी निष्पादन के तैयार करने का आदेश। जैसा ही नौकरों ने हिस्सेदारी को तेज किया और इसे क्रिमिनल के अंतिम आवे के लिए तैयार किया, ये मंत्री को हुआ कि अमीर व्यापारी किसी भी तरह दांव पर ठीक से निष्पादित करने के लिए बहुत पतला था। उन्होंने राजा के सामान्य ज्ञान की अपील की। राजा भी इससे चिंतित था। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. हम क्या करेंगे? उन्होंने कहा जब अचानक उसे लगा कि उसे बस इतना करना है कि वह आदमी को दांव पर लगा दे जिससे कि वह फिट हो सके। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. नौकरों ने तुरंत उस आदमी की तलाश में पूरे शहर में भेज दिया गया जो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो हिस्सेदारी में फिट हो, और उसकी नज़र उस शिष्य पे पड़ी जिसने केले और चावल और गेहूं और घी के लिए महीनों तक खुद को फेंटा था।
थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, कंपैरिजन क्वेश्चंस दिए हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। थैंक यू वेरी मच।